ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ। 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਸੀਐਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਤਬਾਦਲੇ। ਖੰਨਾ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖੰਨਾ ਦੇ ਗਗਨਦੀਪ ਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਲਿੰਕ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਗਨਦੀਪ। ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡਿਊਟੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀਵੀਆਈ। 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ। ਭਗਦੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 13 ਜ਼ਖਮੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ। ਪੀਐਮ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਐਲਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਟੀਕਾਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ। ਖੰਨਾ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਗਨਦੀਪ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਦੀਪ, ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ? ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ ਤਾਲੁਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ ਹੈ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਖੰਨਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਬਤੌਰ ਐਸਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਚਾਰਜ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਨ ਮੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸਦੀ ਗਾਜ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀਗੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਐਸਐਚਓ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਕਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੀ ਗਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਦੀਪ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨਦੀਪ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਗਨਦੀਪ ਖੜਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦਾ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਗਗਨਦੀਪ ਔਰ 2019 ਤੱਕ ਉਹ ਖੰਨਾ ਦੇ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਗਨਦੀਪ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਗਗਨਦੀਪ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ VVIP ਤੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ MSP ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। MSP ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਨ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ MSP ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਸੀ ਸੋ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਡਾਲਵੇ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ MSP ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। साहब आज आप यहाँ पर आए हैं, किसान आंदोलन खत्म हुआ है, मांगे हो गई है पूरी, आगे की रणनीति पूरी कहाँ हुई मांगे? आंदोलन स्थगित हुआ है समझौते के आधार पे। अभी तो MSP की कमेटी की बात है, वो कमेटी नहीं उन्होंने बनाई अभी तो और बहुत से सवाल है। एक दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं ये अभी, उस पर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो पॉलिसी लेकर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से कई जगह से वो पॉलिसी है, उसका दूध के किसानों पे क्या फर्क पड़ेगा उस पर जब तक बातचीत नहीं होगी वो इशू है। बिजली अमेंडमेंट बिल है, बहुत से सवाल है, सरकार बैठ के बातचीत करे उन सब पे। लेकिन साहब 22 किसान जो है नेता वो चुनाव लड़ रहे हैं, 22 किसान नेता किस तरह से देखते? भाई वहां से तो छुट्टी पाए थे ये, अब छुट्टी पे आने के आदमी क्या काम करने लगे उसकी तो जिम्मेदारी है नहीं। 4 महीने की छुट्टी थी इनकी। आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसका असर क्या पड़ेगा? ये देख रहे कि तो 4 महीने बाद में पता चलेगा। बिल्कुल। हाँ, सर MSP पर अभी कमेटी नहीं बनी, ऐसे में किसान नेता चुनाव लड़कर संघर्ष को कमजोर नहीं बना रहे, आपको लगता है? हम ये कह रहे कि हम देश का किसान वोट भी दे रहा है, ये वोट मांगने जा रहे हैं सब पॉलिटिकल पार्टी वाले वही, तो जो लड़ रहा उससे मतलब नहीं है ना। कमेटी भारत सरकार बनाए, कमेटी में वे लोग रहेंगे जो चुनाव नहीं लड़ रहे। क्या राकेश टिकैत यूपी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम तो नहीं चुनाव लड़ रहे, ना कोई परिवार में से लड़ रहा, ये कंफर्म? पक्का कंफर्म है। इलेक्शन पंजाब में है, आप लगातार दौरे भी कर रहे हैं, निर्मल सिद्धू जी भी लगातार लगे हुए हैं, किसानी आंदोलन में भी इन्होंने बड़ा काम किया। किस तरह से देखते हैं इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि अब पंजाब की अगर हम बात करें, यूपी में भी इलेक्शन है, यहाँ भी जोर तोड़ चल रहा है, किस तरह से देखते हैं? किसान नेता कई चुनाव लड़ रहे हैं, कई दूसरी पार्टियों में जाने की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें हम तो इससे बाहर है चुनावी सिस्टम से। और किसी को कहाँ जाना वो सलाह मशवरा ना हमारा है, ना हम किसी को देना चाहते, उनका इंडिपेंडेंट अपना फैसला है, तो अपना फैसला भाई खुद करो।
तो यानी कि आपका कहना है राकेश टिकैत जी कि और भी कई पॉलिटिकल चीज, से दूर रहेंगे हम पूर्ण रूप से, यानी कि पॉलिटिकल आप इंटरफेयर नहीं, नहीं करेंगे, किसी का नहीं करेंगे, हम दूर रहेंगे पूर्ण। यानी आप न्यूज 18 पे बोल रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। हाँ, ऐलान कर रहे हैं, हम तो बगल रहेंगे इस सिस्टम से भाई। अच्छा। हाँ, सिस्टम में। क्योंकि ये ऐलान पहले भी कई लीडर्स ने कहा था कि हम किसी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखिए 22 नेता किसानी जो, हाँ, 22 नेता आगे छुट्टी पे गए थे, अब छुट्टी पे जाकर कौन आदमी क्या कर रहा उसकी तो हमारी जिम्मेदारी है नहीं छुट्टी पे जाके उन्होंने पूरा मतलब, भाई। कुछ आप यहाँ से छुट्टी से जाओ चैनल सर, अपने घर पर आप क्या करोगे, तो उसकी तो जिम्मेदारी, छुट्टी की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। पंजाब में इलेक्शन है, यूपी में है, फिर वही बात कि बीजेपी का आप विरोध करेंगे। ये तो जनता विरोध कर रही है, हम क्या विरोध करने वाले हैं, जनता का इनको वोट दे रही है। तो बिल्कुल जैसे राकेश टिकैत जी ने कहा, ये ऐलान भी किया है कि राकेश टिकैत इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अभी भी और भी जो कानून हैं वो बनना बाकी हैं, एमएसपी को लेकर, जो किसानों को लेकर जो फैसिलिटीज देना बाकी हैं, और किस तरह की चीजें होनी चाहिए, किसानों को बेहतर पानी, बिजली और कई चीजें जो है एग्रीकल्चर के लिए वो मिलनी चाहिए, उसको लेकर लगातार इनकी मीटिंग जो है वो की जा रही है। और आगे भी इनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा जब तक कि एक प्रॉपर तरीके से जो है वो काम नहीं होता किसानों के लिए खासकर। चंडीगढ़ से कैमरामैन जयेंद्र सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੁਰੰਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। दोपहर करीब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी, जिसनों खुद बायोडाटा पूरा रिपोर्ट कार्ड जिसका पेश करेंगे सीएम चरणजीत चन्नी और एक गलबात करते हुए नजर आए। और इस विचकार सीधा चलते हैं, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे पार्टी के लोग हैं, अजय दत्त जी एमएलए हैं, राघव चड्ढा हैं, हम सब लोग आए हैं आज। और ये स्थान बहुत बहुत पवित्र हैं। यहाँ पे सीता माता को भगवान वाल्मीकि ने अपनी बेटी की तरह, पुत्री की तरह रखा था। लव कुश का यहीं जन्म हुआ था। लव कुश को भगवान वाल्मीकि ने शिक्षा दी थी। भगवान वाल्मीकि आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भी शिक्षा को बेहद महत्व दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी शिक्षा को बहुत महत्व दिया। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने विदेशों से 2-2 पीएचडी हासिल की, डॉक्टरेट। घर में खाने को नहीं था, फिर भी उन्होंने स्कॉलरशिप लेके और बाहर 2-2 पीएचडी हासिल की। बाबा साहब का सपना था कि देश का हर बच्चा उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, लेकिन आज 70 साल के बाद भी बाबा साहब का ये सपना पूरा नहीं हो पाया। आज भी गरीब तबके को, दलित तबके को, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। गरीबी की वजह से दलित समाज के लोग, एससी भाईचारे के लोग, गरीब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने में मजबूर होते हैं और सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है। हम लोगों ने कसम खाई है कि बाबा साहब का सपना हम लोग पूरा करेंगे। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने सरकारी स्कूल शानदार किए, उसी तरह से आज इस पवित्र स्थान पे मैं कसम खा के जाता हूँ, पंजाब में हमारी सरकार बनेगी। एससी भाईचारे के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की, जो शिक्षा अमीरों के बच्चों को मिलती है, ऐसी अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी होगी। सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। बाकी पार्टियों, बाकी सरकारें जो मर्जी वादे करें, लेकिन आज तक किसी ने आपको ये नहीं आके कहा होगा कि आपके बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देंगे। नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। आपके बच्चों को एक पीढ़ी के अंदर अगर हमने अच्छी शिक्षा दे दी, एक पीढ़ी के अंदर पूरे समाज की गरीबी दूर हो जाएगी और पूरा समाज बाकी समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। बराबरी का हक मिलेगा शिक्षा की वजह से, केवल और केवल शिक्षा के। ये शिक्षा बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, मैंने यहाँ के संत समाज से बात की। संत समाज का
कहना है कि श्राइन बोर्ड यहाँ पे भंग करके और समाज का मंदिर है का हक मिलेगा शिक्षा की वजह से, केवल और केवल शिक्षा के से। ये शिक्षा बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, मैंने यहाँ के संत समाज से बात की। संत समाज का कहना है कि श्राइन बोर्ड यहाँ पे भंग करके और समाज का मंदिर है, समाज का पवित्र स्थान है, समाज को उसको चलाने की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। हम सरकार बनने के ऊपर तीसरी चीज, सफाई कर्मचारी जो कि आज बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, कच्चे हैं, उनकी नौकरी का आज नहीं पता, उनको ठेकेदार तरह तरह से शोषित करते हैं। हमारी सरकार बनने पर सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और उनको सारी सहूलियतें दी जाएगी। और चौथी चीज कि अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग, उसको इसमें क्या बोलेंगे पंजाबी में, सीवरमैन, वो जो सीवर के अंदर आज भी घुस के खुद हाथ से साफ करते हैं विदाउट किट। 21वीं सदी में हम लोग चले गए। ऐसे में मजबूरी के अंदर लोगों को आज भी सीवर के अंदर खुद घुस के ये काम करना पड़े, ये सही नहीं है। गैस बनती सर मौत। हमने दिल्ली में उन लोगों को, एससी भाईचारे के लोगों को मशीनें खरीद के दी हैं। उन्होंने अपनी मशीनें खरीद के अपना बिजनेस शुरू कर लिया। ऐसे ही हम पंजाब के अंदर भी तो बेरोजगार भी नहीं हुए। जो कल तक आदमी अंदर घुस के सीवर मैन होल में सीवर की सफाई करता था, आज वो बिजनेसमैन बन गया। उसको सरकार ने बिजनेस करने के लिए एक मशीन दिया, वो मशीन से सफाई करता है। पहले वो अंदर घुस के सफाई करता था। ये सीवर के अंदर घुसना बंद करेंगे और सबको मशीनें देंगे ताकि इज्जत के साथ, इज्जत बख्शेंगे, इज्जत देंगे, बराबरी का हक देंगे, ताकि वो बिजनेस भी करे और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जी सके। तो ये 4 बातें मुझे आपके समक्ष रखनी थी। अगर कोई और पंजाब सरकार ने एक आज तबादले किए हैं पुलिस में, जिन्होंने मजीठिया के केस में किया था, जैसे हम थाना अब उनका ट्रांसफर हो गया, क्या काम करते हैं जिन्होंने मजीठिया के केस में नई जांच में? देखो जी, लीपापोती चल रही है, बाकी तो और कुछ नहीं है। एफआईआर दर्ज की उन्होंने और खूब बड़ी हमने एफआईआर कर दी। 5 साल लगते हैं उनको एक एफआईआर दर्ज करने में। हमने एफआईआर कर दी, हमने एफआईआर कर दी, हमने एफआईआर कर दी। एफआईआर करे भी कितने दिन हो गए, गिरफ्तारी करने की हिम्मत नहीं हो रही उनके। मेरे ख्याल से उसके बाद उन्होंने निचली अदालत में बेल के लिए अप्लाई करा, एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई। मेरे ख्याल से 75 साल में भारत के इतिहास में पहला मामला होगा। नहीं तो जिस दिन एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होती है, अगले दिन शाम, उसी दिन शाम को गिरफ्तारी हो जाती है। एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुए कितने दिन हो गए, अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। दिखावा कर रहे हैं। इन लोगों को ना तो बेअदबी की वो है, ना नशे की चिंता है, केवल और केवल कुर्सी की गंदी लड़ाई चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये सही नहीं है। मेरी आप लोगों से 1 मिनट निवेदन है। आज हम पवित्र स्थान पे बैठे हैं, यहाँ पे ये सब संत समाज है, यहाँ पे राजनीति की बात ना करें। इन लोगों को थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा संत समाज को। हम यहाँ पे केवल और केवल इसके जो मैंने अभी ऐलान किए हैं, आपने कहा कि बाबा साहब का एक सपना था जो 21वीं सदी में पूरा नहीं हुआ, तो क्या वो सपना केजरीवाल पूरा करेंगे? हम जी बिल्कुल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जीवन में बाबा साहब का सपना जरूर पूरा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जीवन में इस देश के एक बच्चे को, चाहे कितना भी गरीब का बच्चा हो, चाहे कितना दलित का बच्चा हो, हर बच्चे को मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने कसम खाई है। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मकसद है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, इनको मैं अपना बच्चा मानता हूँ। तो जैसे मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई है, एससी भाईचारे के बच्चों को भी मैं अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा। अभी यहाँ पे हम राजनीति की बात नहीं करते, इनको थोड़ा तकलीफ हो रही है सबको। आखिरी सवाल, दिल्ली में कोरोना काल में जो सफाई कर्मचारी शहीद हुए थे, उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया है। कितने कर्मचारियों को दिया गया है? मेरे पास अब लिस्ट नहीं है, लेकिन सुनो
नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी कर्मचारी वैष्णो देवी में, हाँ, मैं सुबह सुबह जैसे ही हम सो के उठे और नए साल के उस पर इतनी दुखद खबर हमें सुनने को मिली कि वैष्णो देवी में स्टैम्पीड हुआ और स्टैम्पीड में 13 लोगों की मौत हो गई है और इतने पवित्र स्थान पे वो गए थे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सबको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और घायल जल्द से जल्द ठीक हो। शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा पंजाब के स्कूलों का बुरा हाल है, टीचर नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चे हैं तो पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। आपकी सरकार आती है तो क्या उन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी या जिस तरह से पहला जिस तरह से दिल्ली में चल रहा है गेस्ट टीचर, उस तरह नहीं, अच्छे शिक्षक रखे जाएंगे, पक्के शिक्षक रखे जाएंगे। अभी तक क्यों नहीं है? दिल्ली में सर्विसेज हमारे पास नहीं है, पूर्ण स्टेट दे दो, देखो दिल्ली में क्या करिश्मे करके दिखाते हैं। ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ गिरफ्तारी करन तो एक FIR जरूर दर्ज कर ली है पर उन्होंने लंबा समा हो गया और हुण घबराहट हो रही है जो गिरफ्तारी का ना आता है क्योंकि हुण तक अगाऊ जमानत जी है वह भी रद्द हो गई है एक बार और उस तो बाद ही तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है जे मामले च वेख्या गया पर हुण तक गिरफ्तारी ना होना वड्डे सवाल खड़े करता है। इस तो इलावा फिर तो यो चंगी सिक्ख्या नूं लैके अपना बयान दोहराते हुए कहते हुए लोगों को नजर आए ने कि चंगी सिक्ख्या जी है लोगों को दी जाएगी और जेकर अध्यापकों की गल की जाए तो पक्के अध्यापक रखे जाएंगे जो इन्हों की सरकार आएगी कहते हुए नजर आए ने और खास तौर पर जो गल की जाती है तो सीवरमैन को लैके वो भी इन्होंने मसला चुकया और कहा कि बिना किट तो अज वो सफाई करते हैं असी 21वीं सदी के जी रहे हैं पर अजिहा नहीं होना चाहिए। असो ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों को लैके अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 2022 के मद्देनजर कह सकते हैं कि दौरे जोड़े ने अरविंद केजरीवाल होरां दे चल रहे हैं। उधर गल की जाए तो 70 साल बाद भी बाबा साहिब का सुपना अधूरा रहा है, यह भी कहते हुए नजर आए ने बाबा साहिब का सुपना असी पूरा करांगे, सरकार आउंदे सारे बच्चों को चंगी तो चंगी सिक्ख्या दी जाएगी। सो इत्थे एक छोटा जिहा ब्रेक लैने और जल्दी वापस आवांगे।